Yes, sir. So class, good morning. I welcome you all in today's online class. We have already done advertisement. We have discussed the different type of advertisement. हमने अलग अलग types की advertisement की थी as per their nature. I have also recorded the video and sent the same in the group, and I hope you have gone through that particular video. So if somehow further you have some doubt with the same, you can ask me your doubts without any hesitation, and that is more important and that will be appreciated. I don't want you to keep anything in your mind. कोई भी doubt अपने mind में मत रखना बच्चा. I really want कि if you have some doubt it should be sorted out then and there only, right? So I have decided to discuss one of a question from the same topic, advertisement, and I will be helping you out ke what are the points which we will be considering while framing these type of framing advertisements, right? I want you people to put yourself on mute so that you can listen and everyone can listen to me properly without any interruptions. If there would be anything, you can raise your hands and definitely I will be getting back to you and will be helping you out to clarify your doubts. So if we talk about the very first question which I have mentioned over the screen, which has been shared with you all, first we will try to understand the question, fetch all the details from the question itself, then we will be moving further towards the drafting of the advertisement. बच्चे, मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया है, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट कि हम क्वेश्चन को किस तरह से ड्राफ्ट कर रहे होंगे और हम इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से कर रहे होंगे. So I really want you to concentrate for this class, for this particular session. If you have any doubt, please write it down, and at the end of this session I will be coming back to your doubt. But I really want, if you have some doubt, to write it down. उसको लिख लीजिए अपने notebook में. तो बच्चे, if we talk about this question says you are Ram and Rajni. आप या तो राम है या तो रजनी है. You have to draft a classified advertisement. Classified advertisement क्या होती है? छोटे एडवर्टीजमेंट होती है और आपको ये एडवर्टीजमेंट 50 वर्ड से ज़्यादा ड्राफ्ट नहीं करनी है. और हम इसे कहाँ पब्लिश करवा रहे हैं? हम इसे पब्लिश कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर में, जिस न्यूज़पेपर का नाम है इंडिया टाइम्स, राइट? हम ये एडवर्टीजमेंट कहाँ दे रहे हैं? इंडिया टाइम्स में. ओके. क्वेश्चन आगे कहता है दिस एडवर्टीजमेंट इज फॉर द सेल ऑफ ए यूज मोटर कार गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल. यानी हमारे पास एक कार है जो कि हमने वो यूज़ की है, एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि इट्स ए यूज मोटर कार, और हम इसको बेचना चाहते हैं. और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जब हम इसे बेच रहे हैं तो हम इसके रिलेटेड सारी नेसेसरी डिटेल्स जो हैं वो ऐड करेंगे. और एंड में लिखा है यू कैन बी कॉन्टैक्टेड एट 12345679. मतलब कि हमारा फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है. तो बच्चे, आई विल बी गिविंग यू द जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको एडवर्टीजमेंट के दौरान अडाप्ट करनी है, राइट? द एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी देयर इन ए बॉक्स. आपको ये बॉक्स बनाना है. एडवर्टीजमेंट हमेशा बॉक्स में आती है. आप ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आप पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, राइट? यू विल बी मेकिंग द बॉक्स फ्रॉम ऑल 4 कॉर्नर्स. नीचे से भी आप इसको कवर करेंगे, एंड यू विल बी कवरिंग इट विद द हेल्प ऑफ ए ब्लू पेन एंड स्केल. आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, आपने स्केल का यूज़ नहीं किया और आपने हाथों से ही बॉक्स बना दिया, यू विल लूज योर मार्क्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लास, आप पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. दिस इज अ गाइडलाइन विच इज बीन गिवन बाय जेके बोर्ड. ये मेरी गाइडलाइंस नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. बट if we are there enrolled in J&K board, we have to go as per the guidelines which has been issued by J&K board only. Okay. So as per the question, it is being said कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना? और वो प्रोडक्ट क्या है? वो एक यूज मोटर कार है. हमने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, ठीक है? हेडिंग किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड टू यू. हमने बेचना है तो इसका हेडिंग क्या आएगा? फॉर सेल, क्योंकि वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट. ओके बच्चे, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कॉमनली पूछना चाहता हूँ, हैव यू एवर गॉन टू मार्केट फॉर परचेजिंग समथिंग? कभी मोबाइल परचेज किया है खुद मार्केट में जाके? यस सर. है ना? Yes, sir. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हम सभी करते हैं.
So I really want to ask you, whenever you have been to the market for the purchase of the mobile, what made you to buy a mobile of your choice? आप सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? प्रोसेसर, 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 रैम, रोम, स्टोरेज, ओके, बैटरी प्रोसेसर, बैकअप, रैम, रोम, कैमरा, बैटरी कैमरा, बैकअप, कैमरा, और डिस्प्ले, डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले का साइज क्या है? स्टोरेज, स्टोरेज अगेन रैम रोम में आ गया, वो मेमोरी में आ गया। प्राइस, प्राइस क्या है? ओके, प्राइस भी, वेरी गुड। हम उसका प्राइस भी देखते ब्रांड, हैं। ब्रांड, ब्रांड, वेरी गुड, हम ब्रांड देखते हैं कि कौन से ब्रांड का है। वेरी गुड। और फोन की लुक, फोन की लुक। क्या हम मोबाइल का कलर देखते हैं? यस हमें सर, कौन से कलर का मोबाइल चाहिए? मे बी ग्रे, मे बी ब्लू, मे बी ब्लैक, है ना, एज पर आर प्रेफरेंसेस ओनली। तो बच्चे कुल मिला के हमने क्या देखा? हमने मोबाइल के फीचर्स देखे। हम मोबाइल के फीचर्स पे फोकस कर रहे हैं। कलर, बैटरी बैकअप, उसका रैम रोम, स्क्रीन का साइज, उसका वर्जन, ब्रांड। ओके, ब्रांड इज सेपरेट थिंग, बट उसके अलावा ये उस मोबाइल के फीचर्स, कैमरा कितना जूम इन कर रहा है, कैमरे के क्या पिक्सल्स हैं, ये सारे फीचर्स आ गए। अब मानिए कि आपने वो मोबाइल फ़ोन 6 महीने यूज़ किया, नाउ यू वांट टू बाय ए न्यू मोबाइल फ़ोन, है ना। आपने मोबाइल फ़ोन जो ख़रीदा उसे 6 महीने आपने यूज़ किया, नाउ यू हैव टू बाय ए न्यू मोबाइल फ़ोन, जिसके लिए आप एक एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करते हैं। जब आप उस मोबाइल फ़ोन की एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करेंगे तो आप लोगों को क्या बताएंगे ताकि लोग आपके मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों? वॉट विल यू टेल टू पीपल और योर बायर्स? क्या बताएंगे बच्चे? कंडीशन ऑफ द मोबाइल, बेटा उसका कंडीशन, मॉडल बताएंगे, डेफिनेटली कंडीशन, मॉडल, उसके यूएसपीस क्या होते हैं? यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, उसके फीचर्स, है ना। वैसे ही जब आप अपना एक सेकेंड हैंड कार बेच रहे हैं तो आप अपनी सेकेंड हैंड कार के बारे में सब कुछ बताएंगे ताकि आपका बायर जो है, जो आपके एडवर्टीजमेंट का इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है, जो आपके परचेज कर सकता है, जो पोटेंशियल है जिसके अंदर, वो फीचर्स पढ़ के आपको कॉन्टैक्ट कर सके और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चे? यहाँ पे हम एक सेकेंड हैंड कार बेच रहे हैं। तो हमने सबसे पहले बॉक्स बनाया ब्लू पेन और स्केल से। हमने हेडिंग लिखी सेंटर में, हेडिंग हैज़ टू बी रिटन विद ब्लॉक लेटर्स, ठीक है। हमने ब्लॉक लेटर यूज़ किए, फॉर सेल डाला, वी हैव टू लीव अ लाइन, इट हैज़ बीन क्लियरली मेंशन्ड ओवर हेयर। और हमने इसकी बॉडी ड्राफ्ट कर दी। बॉडी कैसे ड्राफ्ट की? अवेलेबल ब्लैक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर। हमने क्या बताया? हमारे पास एक कार अवेलेबल है जो मारुति की है ब्रांड, और इसका कौन सा मॉडल है? स्विफ्ट डिज़ायर है, ठीक है। कलर को स्पेसिफाई किया, इसका कौन सा मॉडल है ये भी स्पेसिफाई किया, कौन सा ईयर मैन्युफैक्चर्ड है, ये सेल्फ ड्रिवन है, इसको हमने बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही अच्छे से चलाया है। इसकी जो चेसिस है, चेसिस होती बॉडी जो है, वो स्क्रैच फ्री है। इसमें एक स्टीरियो अवेलेबल है। इसका जो एयर कंडीशनर है वो भी परफेक्टली काम कर रहा है, कोई भी स्क्रैच नहीं है। इसकी जो अपहोल्स्ट्री है वो ब्यूटीफुल है। सो हेयर ए न्यू वर्ड हैज़ बीन यूज्ड, अपहोल्स्ट्री। आई रियली वांट टू आस्क यू बच्चे, अपहोल्स्ट्री क्या होती है? इंटीरियर शायद, इंटीरियर, ओके। इंटीरियर में जो सीट कवर्स आते हैं वो आपके अपहोल्स्ट्री में आते हैं, मैटिंग्स आती हैं, सीट कवर आता है, वो अपहोल्स्ट्री में आता है, ठीक है। ये गुड कंडीशन में अवेलेबल है, इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट। अब हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्या यहाँ पे नाम दिया है? यस, यहाँ पे नाम दिया है, तो हमने यहाँ पे राम या रजनी लिख लिया और हमने फ़ोन नंबर दे दिया। बच्चे ट्राई टू गिव दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन में वही इंफॉर्मेशन देना है अपने आंसर में जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हमें क्वेश्चन में आंसर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो वी आर नॉट अलाउड टू राइट आर पर्सनल इंफॉर्मेशन। हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना है। वी आर नॉट अलाउड टू राइट आर नेम, वी आर नॉट अलाउड टू राइट आर स्कूल्स नेम, वी आर ओनली allowed to write the information which is given in the question. Else if no information is given in the question, then we have to go with an imaginary or a creative information. Is it clear बच्चे?
Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ओके आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर एक्स वाई जी या ए बी सी लिख सकते हैं? तो बच्चे एक्स वाई जी और ए बी सी बी नहीं लिख सकते। आप एक इमेजिनरी नाम लिखिए, राम लिखिए, श्याम लिखिए, जॉन लिखिए। ट्राई टू यूज स्मॉल नेम, है ना, जैसे 3 लेटर 4 लेटर वर्ड, ताकि इट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू सेव योर टाइम सो दैट यू कैन मैनेज योर टाइम एंड यू कैन कंप्लीट योर पेपर विद इन द टाइम लिमिट दैट इज गिवन टू यू। ओके बच्चे, Yes, sir. is there anything you want to ask? No, sir. No, Okay. sir. So this question clear to you all? Yes, sir. Okay, we are moving to another question. The question says, try to Excuse me, understand. sir. Yes बच्चे? सर अगर क्वेश्चन में नेम नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? बच्चे imaginary name. I have already told you you're not allowed to give your personal information. आप personal info नहीं देंगे. You will be giving a creative name. You're not allowed to write ABC XYZ. It has been abolished. खत्म हो गया ये. Write a short name. Any name. Imaginary. But not yours. Got it? यस सर, बट सर जो एड्रेस है वो भी ऐसे ही लिखना है? बच्चे सी कीप वन थिंग इन योर माइंड. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. यू नीड टू फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली. जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिख रही है वो तो लिखनी है. अब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिख रही, चाहे वो एड्रेस है चाहे वो ईमेल है, वो आपने अपनी इमेजिनेशन पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नंबर दिया है. आई कैन इवन ऐड ईमेल टू इट. आई गिव यू रीज़न. ठीक है, आई गिव यू रीज़न. रीज़न इज़ कि हो सकता है कि मेरा फ़ोन जो है वो उस टाइम पे आउट ऑफ रीच हो जब मुझे बायर कॉल कर रहा है. इज इट पॉसिबल? देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. इज देयर अ पॉसिबिलिटी? यस ना. Yes, sir. At least I have given him a second option to contact me, that is my email address. अब इसका email address अगर मैं imaginary बनाना चाहूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ ram1@gmail.com? Yes, sir. Again imaginary. So that a person would be in a position to drop me a message, and whenever I will be free, I can look at the message and I can reply कि okay, you are interested, you can meet me here and there, where we will be finalizing the deal. समझ में आया बच्चे? यस सर. Yes, sir. क्लियर है? यस सर. एडवर्टीजमेंट में 2 चीजें याद रखना हमेशा. चाहे एड्रेस मत लिखो, ठीक है. अगर एड्रेस क्वेश्चन में दिया है तब तो लिखना ही लिखना है. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना. क्वेश्चन तो हमने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन तो वी हैव टू राइट विदाउट एनी फेल. इफ एड्रेस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन अवॉइड राइटिंग एड्रेस. मगर 2 चीज अवॉइड मत करना, एक फ़ोन नंबर, दूसरा ईमेल. क्योंकि विदाउट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स योर एडवर्टीजमेंट विल स्टैंड नथिंग, बिकॉज द बायर वोंट बी एबल टू, और द पर्सन जो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करेगा. तो ईमेल और फोन नंबर को मैंडेटरी कर देना. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. So now coming to next question. Try to understand this question really very well. This question says you want to let out a house. Prepare an advertisement to this effect for publication in a newspaper, giving the location of building, nature of accommodation and rent expected. There is a word which is being used in the question कि हमने क्या लेना है, रेंट एक्सपेक्टेड. मगर अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ें तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है यू वांट टू लेट आउट ए हाउस. लेट आउट का क्या मतलब होता है? Rent. यस, यू वांट टू मेक योर हाउस अवेलेबल ऑन रेंट. बच्चे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से भी पढ़ेंगे तो एंड में ये वर्ड जो यूज हुआ है रेंट एक्सपेक्टेड, उसका मतलब यही है कि आप कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया है, यहाँ पे फोन नंबर नहीं दिया है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं दिया है. Excuse me, sir. वेट ए मिनट बच्चे, लेट मी फिनिश देन आई एम कमिंग बैक टू यू. यू डोंट हैव टू वरी. ओके, सो बच्चे ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. यहाँ पे आपने अपना घर रेंट आउट करना है. आप अपने घर की लोकेशन बताएंगे,
आप नेचर ऑफ एकोमोडेशन बताएंगे, आप कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये बताएंगे। दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपका नाम नहीं दिया है, आपका फ़ोन नंबर नहीं दिया है, आपका ईमेल एड्रेस नहीं दिया, आपका एड्रेस नहीं दिया है। तो यहाँ पे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है बच्चे वो इमेजिनरी यूज होंगी। आई रियली वॉन्ट टू नो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग। लोकेशन मतलब कि आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। नेचर ऑफ एकोमोडेशन का क्या मतलब हुआ बच्चे, इसमें नेचर ऑफ एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है? नेचर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि आपका जो घर है जो आप रेंट पे देना चाहते हैं वो किस टाइप का है। क्या वो 2 BHK है, क्या वो 3 BHK है, क्या वो इंडिपेंडेंट घर है, क्या आप सेकंड फ्लोर दे रहे हैं, क्या फर्स्ट फ्लोर दे रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर दे रहे हैं। इसका मतलब होता है नेचर ऑफ एकोमोडेशन, और आप कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, हियर आई रियली वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन टू यू ऑल। बच्चे, जब आप फॉर एग्जांपल कोई घर रेंट पे लेना चाहता है तो सबसे पहले बेसिक चीज क्या देखता है? एनी आइडिया? लोकेशन। लोकेशन तो है, इसके अलावा बेसिक चीज, बेसिक चीज ये देखता है कि 24 आवर्स पावर सप्लाई है, बिजली है क्या, 24 आवर्स, यस, वाटर सप्लाई है, पानी आ रहा है, वहां से हॉस्पिटल कितना दूर है, वहां से लोकल मार्केट कितना दूर है, वहां से ग्रोसरी शॉप्स कितनी दूर हैं, वहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड कितना दूर है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर होती हैं जो कि आप अपनी इमेजिनरी बेसिस में 50 वर्ड्स को कवर करने के लिए अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज कर सकते हैं फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ योर एडवर्टीजमेंट। बच्चे, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन में डाउट्स की अभी हम बात करें, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। एज पर No, द sir. नेचर ऑफ द क्वेश्चन आप सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे जो आप बनाएंगे पेन और स्केल से। पेंसिल यूज करना अलाउड ही नहीं है, आई हैव टोल्ड यू। मगर इसका हेडिंग क्या आएगा? Yes, sir. व्हाट वुड बी द हेडिंग जो सेंटर में आएगी? टू लेट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका जो हेडिंग है वो टू लेट है, क्योंकि वी आर मेकिंग ए हाउस ए अकोमोडेशन अवेलेबल ऑन रेंटल बेसिस। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. ओके, थैंक यू।